Hi everyone, this is Seshabi Agarwal and welcome to another part of assessment procedure. So we'll start. Return of income of charitable trust and institutions. Section 139 4A. So in this we will talk about return of income in case of charitable trust and institutions. So person required to furnish return under section 139 4A. Every person in receipt of income. Now who is required to furnish return in case of charitable trust? Every person in receipt of income derived from property held under a trust or any legal obligation, wholly or partly for charitable and religious purposes, or by way of voluntary contribution on behalf of such trust or institution, must furnish return of income if the total income in respect of which he is assessable as a representative assessee, computed before allowing any exemption under section 11 and 12, exceeds the basic exemption limit. So basically, a person is required to furnish return under section 139 4A अगर उसके पास ये दोनों इनकम होती है. कैसी? डेराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड अंडर अ ट्रस्ट और रिलीजियस और लीगल ऑब्लिगेशन होली और पार्टली फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी से इनकम डेराइव हो रही है, या फिर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, तो उसको ROI अपना फर्निश करना है in respect of which he is assessable as a representative assessee, computed before allowing exemption under 11 and 12 exceed the basic exemption limit. 11-12 की exemption को हटा के अगर वो exceed करती है basic exemption limit से, तो हमें उसका ROI फाइल करना है. Such persons should furnish the return in the prescribed form and verified in prescribed manner, containing all the particulars prescribed for the purpose. Now, returns filed by representative assessee. The return must be filed by the representative assessee voluntarily within the time limit. Any failure on the part of the assessee would attract liability to pay interest, fees and penalty. अब आगे ड्यू डेट की बात करी जाती है. ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी? इन केस ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है. इट मे बी नोटेड दैट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और अदर लीगल ऑब्लिगेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड व्हेन इट्स इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 11 and 12 exceed the basic exemption limit. In such cases, the due date would be 31st October of the relevant assessment year. तो 31st अक्टूबर होगी ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. अब आ जाते हैं रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 139 4B. अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिटर्न ऑफ इनकम की बात हो रही है. इसमें क्या बोलता है? अंडर दिस सेक्शन the CEO of political party is statutorily required to file a return of income of political party if before claiming exemption under 13A the political party has income exceeding the basic exemption limit. अब इस केस में CEO ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइल करना होता है अगर 13A के एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले उसकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड हो रही है. तो अगर वो एग्जेम्पशन हम हटा दें तो फिर अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड हो रही है तो हम पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न फाइल करेंगे. और ये किसको फाइल करना होगा? CEO ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. The return must be filed in the prescribed form and verified in the prescribed manner, setting forth such other particulars as may be prescribed by CBDT. The provisions of the Act would apply as if it were a return required to furnish under Section 139(1). Furnishing the return mandatorily to claim exemption under 13A. अब ये बोलता है कि हमें रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना है अगर हमें एग्जेम्पशन चाहिए अंडर 13A. द ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर 13A is subject to the condition that political party submit a return of its total income within the time limit prescribed under section 139(1) gets the account audited. तो ये बोल रहा है द ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी अंडर सेक्शन 13A इज सब्जेक्ट टू
द कंडीशन, किस कंडीशन के सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशन? दैट पॉलिटिकल पार्टी सबमिट अ रिटर्न of its total income within the time limit prescribed under section 139(1) and gets the account audited. तो ऑडिट करवाना है उसको, रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करवाना है, तभी उसको 13A में एग्जेम्पशन मिलेगा. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग की बात करते हैं. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. Since the audit of accounts is mandatory for political parties claiming exemption under section 13A, the due date of filing of return of income would be 31st October of relevant assessment year. अब बात करते हैं मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय रिसर्च एसोसिएशंस, न्यूज़ एजेंसी, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा. अब इनकी बात करते हैं. दे फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)(c). अब ये सेक्शन क्या बोलता है? इट विल बी मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, पर्सन्स एक्सेट्रा to file the return of income if their total income without giving effect to the exemption under the respective clauses of section 10 exceed the basic exemption limit. अब section 10 में कुछ clauses दिए हुए हैं जिनमें इनकी इनकम को exempt किया हुआ है रिस्पेक्टिवली. तो अगर उन एग्जेम्पशंस को हटाकर अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करता है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम भरना कंपलसरी होगा. तो ये क्लॉजेस कौन से हैं? रिसर्च एसोसिएशन के केस में सेक्शन 1021, न्यूज़ एजेंसी सेक्शन 1022B, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन सेक्शन 1023A, फंड फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ और देयर डिपेंडेंट्स 1023AAA, इंस्टीट्यूशन 1023B, फंड और इंस्टीट्यूशन 1023C4, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन 1023C5, यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 1023C6, 3AD, 3AB, हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन 1023C, 6A, 3AE एंड 3AC, म्यूचुअल फंड 1023D, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट 1023DA, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड 1023ECED, कोर सेटलमेंट गारंटी फंड 1023EE, वेंचर कैपिटल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड 1023FB, ट्रेड यूनियन एसोसिएशन 1024AB, बोर्ड और अथॉरिटी 1029A, बोर्ड और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन 1046, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 1047. तो ये हो गए क्लॉजेस जिसमें एग्जेम्पशन दिए गए हैं इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस को. अब आगे क्या बोलता है इसके बारे में? सच रिटर्न ऑफ इनकम शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड सेटिंग फॉर सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. हर केसेस में ये होती है लाइन. देन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई एज इफ इट वर अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139(1). अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के केस में रिटर्न फाइलिंग की. अभी तक हमने किसकी बात करी? चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करी, फिर हमने बात करी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, फिर हमने बात करी रिसर्च एसोसिएशंस, न्यूज़ एजेंसीज, ट्रेड यूनियंस एक्सेट्रा की, और अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस एक्सेट्रा की. इट विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन referred to in clause 2 and clause 3 of section 35(1). अब ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो कि रेफ़र किए गए हैं क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 35(1), which is not required to furnish its return of income or loss under any provision under section 139 to furnish its return in respect of its income or loss in every previous year. All the provisions of Income Tax Act 1961 shall apply to such return as if it were a return under section 139(1). अब ये 139(4)(d) के अंदर it will be mandatory for every university, college और other institution जो कि रेफ़र किए गए हैं क्लॉज 3, क्लॉज 2 में ऑफ सेक्शन 35(1), जिनको रिटर्न फाइल करना रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ 139 टू फर्निश द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम और लॉस इन एवरी प्रीवियस ईयर. अ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय बिजनेस ट्रस्ट, दिस इज सेक्शन 139(4)(e). बिजनेस ट्रस्ट की बात करते हैं. एवरी बिजनेस ट्रस्ट which is not required to furnish return of income or loss under any provisions of this section has to furnish the return of income in respect of its income loss in every previous year.
All the provisions of IT Act 1961 shall apply as if it were a return filed under section 139(1). A filing of return of income by investment fund देखते हैं section 139(4)(e). Every investment fund referred to in section 115 UB which is not required to furnish return of income or loss under any provision of this section shall furnish the return of income in respect of income or loss in every previous year. All the provisions of Income Tax Act 1961 shall apply as if it were return required to furnish under section 139(1). So every investment fund जिसको रेफ़र किया गया है सेक्शन 115 UB में, जिसको which is not required to furnish return of income or loss under any provisions of this section, जिसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, शैल फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इन एवरी प्रीवियस ईयर। उसको फर्निश करना है। ऑल द प्रोविजन शैल अप्लाई एज इफ इट वर अ रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है कि है रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड एज द नेम सजेस्ट, हम अपने रिटर्न को जो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इफ़ एनी पर्सन हैविंग furnished a return under section 139(1) और section 139(4), जिसने रिटर्न फाइल किया है सेक्शन 139(1) में और 139(4) में। अब 139 तो हमें पता है क्या होता है, 139(4) क्या होता है, बिलेटेड रिटर्न। तो अगर किसी ने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है या फिर रिटर्न फाइल किया अंडर सेक्शन 139, तो डिस्कवर्स एनी ओमिशन और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट देयरइन, उसको कोई पता चलता है कोई ओमिशन है या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके रिटर्न में, कुछ भूल गया है या फिर कुछ गलत उसने लिख दिया है रिटर्न में, तो ही में फर्निश अ रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो उसको रिवाइज रिटर्न फर्निश करना होगा बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जब असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है उसके 3 महीने पहले या फिर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसमें उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करना होगा। द रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द गिवन टाइम लिमिट। इस टाइम लिमिट में हम कितनी बार भी अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं कि हम इतनी बार ही रिटर्न अपना रिवाइज कर सकते हैं। इन दिस केस द लेटेस्ट रिवाइज रिटर्न फाइल रिप्लेसेस ऑल अदर रिटर्न्स फाइल्ड अर्लियर। जो सबसे बाद में रिटर्न फाइल होगा वो रिप्लेस कर जाएगा जितने भी उससे पहले रिटर्न फाइल किए गए हैं। तो सबसे लेटेस्ट वाला रिटर्न जो है वो हमारा प्रिवेल करेगा। इट मे बी नोटेड दैट रिटर्न फाइल अंडर सबसेक्शन 1A, 3, 4A, 4F of section 139 are treated as having been filed under section 139(1). Hence, these returns can also be revised subject to satisfying the condition of 139(5). तो जैसे कि हमने नॉर्मल रिटर्न की केस में बात करी, तो अदर केसेस में पॉलिटिकल पार्टी हो गई या ट्रस्ट हो गया, बिजनेस जो मैंने डिस्कस किए थे, उनको ऐसा माना जाता है कि वो 139(1) में ही फाइल हुए हैं, तो उनको भी हम रिवाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(5). अब आगे बात करते हैं रिटर्न के बारे में और चीज़ें। पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न, सेक्शन 139(6). अब सेक्शन 139(6) क्या बताता है कि व्हाट आर द पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद द रिटर्न। द रिटर्न फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 139(3) एंड 142(1) इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस रिक्वायर एसएससी टू फर्निश द पर्टिकुलर्स ऑफ। अब रिटर्न फॉर्म जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है 139(3) में एंड 142(1) में, इन सर्टन स्पेसिफाइड केसेस रिक्वायर एसएससी टू फर्निश द पर्टिकुलर्स ऑफ। किस क्या क्या मेंशन करना होगा उसमें, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो भी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है टैक्स से वो मेंशन करनी होगी। एसेट्स ऑफ द प्रिस्क्राइब नेचर एंड वैल्यू हेल्ड बाय हिम एज अ बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज और इन विच ही इज़ अ बेनिफिशरी, जो भी एसेट्स उसके पास हेल्ड हैं एज अ बेनिफिशियल ओनर या फिर इन विच ही इज़ अ बेनिफिशरी। हिज बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड हेल्ड बाय हिम, जो भी उसके पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है जो कि हेल्ड बाय हिम है। एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स इनकर्ड बाय हिम अंडर प्रिस्क्राइब्ड हेड्स एंड सच अदर आउटगोइंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
अब आगे बात करते हैं पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विद रिटर्न ऑफ इनकम इन द केस ऑफ एन एसएससी एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। अब ये पर्टिकुलर्स स्पेशली उन केसेस के लिए हैं जो कि एंगेज्ड हैं बिजनेस और प्रोफेशन में। एक मिनट। Okay. The prescribed form of return shall in case of an SSC engaged in business or profession also require him to furnish। अब क्या क्या फर्निश करना होगा इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में अगर रिटर्न फाइल होता है तो द रिपोर्ट ऑफ एनी ऑडिट रिफर्ड इन सेक्शन 44AB, द पर्टिकुलर्स ऑफ द लोकेशन एंड द स्टाइल of the principal place where he carries on the business or profession and all the branches thereof। जो भी पर्टिकुलर्स हैं लोकेशन के या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के जहाँ वो बिज़नेस कैरी ऑन करता है और उसकी सारी ब्रांचेस की डिटेल। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स इफ़ एनी इन सच बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी पार्टनर्स हैं उनके नाम। इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, द नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड the extent of the shares of SSC and the share of all other partners or members as the case may be in the profits or business of the profession। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए होंगी इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में। अब बात करते हैं डिफेक्टिव रिटर्न की। डिफेक्टिव एज द नेम सजेस्ट, रिटर्न में कुछ डिफेक्ट है, उस केस में हम क्या करना होगा। सो सेक्शन 139 टॉक्स अबाउट डिफेक्टिव रिटर्न। अंडर दिस सबसेक्शन the AO has the power to call upon the SSC to rectify a defective return। AO के पास पावर होती है to call upon the SSC to rectify a defective return where the AO considers that the return of income furnished by the SSC is defective। He may intimate the defect to the SSC and give him an opportunity to rectify the defect within the period of 15 days from the date of such intimation। अगर AO को लगता है कि रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव है तो वो क्या करेगा, वो एसएससी को इंटीमेट करेगा कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है और उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि अपना रिटर्न रेक्टिफाई करे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज़। 15 दिन के अंदर अपना रिटर्न को रेक्टिफाई कर लें फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। जब इंटीमेट किया उसके 15 दिन के अंदर अपना रिटर्न को रेक्टिफाई कर लें। द एओ हैज़ द डिस्क्रिशन टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड बियॉन्ड 15 डेज ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एसएससी। अगर एसएससी एक एप्लीकेशन देता है कि हाँ हमको 15 दिन से ज़्यादा चाहिए रिटर्न को रेक्टिफाई करने के लिए, तो एओ उसको बढ़ा सकता है टाइम पीरियड को। इफ़ द डिफेक्ट इज़ नॉट रेक्टिफाइड विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज और सच फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड, देन द रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न। अगर 15 दिन के अंदर अंदर या फिर एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर अंदर रिटर्न को सही नहीं किया जाता है तो उसको एज अ इनवैलिड रिटर्न ट्रीट कर लिया जाएगा। द कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट वुड बी द सेम एज इफ द एसएससी फेल टू फर्निश द रिटर्न। उसका इफेक्ट ये माना जाएगा कि एसएससी ने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया। वेयर हाउएवर द एसएससी रेक्टिफाइज द डिफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज और द फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड बट बिफोर असेसमेंट इज मेड, the AO can condone the delay and treat the return as valid return। लेकिन कुछ केसेस में अगर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 दिन या फिर एक्सटेंडेड पीरियड के एसएससी रिटर्न फाइल को रेक्टिफाई करता है लेकिन वो असेसमेंट से पहले रेक्टिफाई कर देता है तो AO कॉन्डोन कर सकता है उसका डिले। कॉन्डोन मतलब माफ़ कर सकता है उसका डिले। अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव अनलेस ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। नेमली, जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको डिफेक्टिव माना जाएगा जब तक कि ये सारी कंडीशन जो कि नीचे दी गई हैं ये फुलफ़िल नहीं होती हैं। तो ये सब कंडीशन जब फुलफ़िल हो जाएंगी तभी उसको डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा, अदरवाइज़ उसको डिफेक्टिव माना जाएगा। क्या? अ स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न, ये होना चाहिए। फिर the report of audit obtained under section 44AB, the proof regarding the tax if any claimed to have been deducted or collected at source, the advance tax or self-assessment tax if any claimed to have been paid। However, the return will not be regarded as defective if certificate for tax deducted or collected was not furnished under section 203 or 206C to the person furnishing his return of income
such certificate as produced within a period of produced within a period. फिर आता है where regular books of accounts are maintained. एक मिनट, इसमें बोलता है द प्रूफ रिगार्डिंग द टैक्स इफ एनी क्लेम टू हैव बीन डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स एंड द एडवांस टैक्स एंड टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट इफ एनी क्लेम टू हैव बीन पेड. ये सब हमें प्रूफ इसका चाहिए होता है. लेकिन द रिटर्न विल नॉट बी रिगार्डेड एज डिफेक्टिव इफ द सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड वॉज नॉट फर्निश्ड अंडर सेक्शन 203 or 206 to the person furnishing his return. Such certificate is produced within a period of 2 years. अगर उसको सर्टिफिकेट फर्निश ही नहीं किया गया तो उसे नहीं प्रोड्यूस किया एक केस, और या फिर वो सर्टिफिकेट 2 years में प्रोड्यूस हो गया तो इस केस में उसको डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा. Where the regular books of accounts are maintained by the SSE, the return of income is accompanied by the following. अगर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द सेसी है, द रिटर्न ऑफ इनकम इज अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग. क्या? कॉपी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एनी अदर सिमिलर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये सब होना चाहिए उसमें. द पर्सनल अकाउंट्स एज डिटेल्ड बिलो. प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोफेशन है तो द पर्सनल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर. फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स और मेंबर्स. Partner or member of a firm, association of person or body of individual. Partner's personal account in firm. Member's personal account in association of persons or body of individuals. Where the accounts of the SSE have been audited, the returns should be accompanied by the copies of the audited P&L and balance sheet and audit report. Where the cost account of the SSE has been audited under section 233B of the Companies Act, जहाँ पे cost अकाउंट ऑडिट हुए हैं अंडर सेक्शन 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द रिटर्न शुड बी अकम्पनीड बाय सच रिपोर्ट, दैट इज़ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट. ये सब चीज़ें जब होंगी तभी हमारा रिटर्न डिफेक्टिव नहीं कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज डिफेक्टिव रिटर्न. वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड बाय द एसएससी, द रिटर्न शुड बी अकम्पनीड बाय. जहाँ पे रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन है उस केस में रिटर्न में क्या क्या होना चाहिए? अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, gross profit, expenses and net profit of the business or profession, the basis on which such amount mentioned in above has been computed, किस basis पे इसको compute किया गया है, and the amount of total sundry debtors, sundry creditors, stock and trade and cash balance at the end of the previous year. It may be noted that a return which is otherwise valid would not be treated as defective merely because of self-assessment tax or and interest payable in accordance with the provision of section 140A has not been paid on or before the date of furnishing the return. तो ये बोल रहा है कि a return is विच इज़ अदरवाइज वैलिड, जो कि और तरीके से वैलिड है, वुड नॉट बी ट्रीट एज डिफेक्टिव, उसको डिफेक्टिव नहीं ट्रीट किया जाएगा मेयरली सिर्फ इस वजह से बिकॉज ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140A हैज़ नॉट बीन पेड. सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं पे किया गया है ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, सिर्फ इस वजह से उसको डिफेक्टिव ट्रीट नहीं किया जाएगा. तो ये हमारा हो गया. अब अगला टॉपिक हम पैन के बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.